اقبال متین کی کہانی پیر صاحب۔ چٹکی ہوئی چاندنی میں پالش کیے ہوئے پتھروں کے چبوترے پر بیٹھا وہ اپنے ہی متناسب بدن کی رعنائی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ایک دلربا تصور نے اس کے جذبات میں جنسی لذتیت کا عنصر کچھ اس طرح شامل کر رکھا تھا کہ وہ اس چاندنی میں اپنے جسم سے چمٹے ہوئے ایک اور بدن کے گلزار کو خیالوں میں بسا کر سکون بھی پا رہا تھا، بےکل بھی ہو رہا تھا۔ اس کے بدن پر ایک چھوٹی سی نیکر تھی جو اتنی فٹ تھی کہ کسمسانے پر پھٹ سکتی تھی، اور وہ بے چینی اس چست نیکر میں جکڑے ہوئے جسم کے حصے کو اس بند سے آزاد کر دینے کا خواہاں تھا۔ گورے سڈول جسم پر اگے ہوئے کالے چھوٹے چھوٹے بال، کشادہ سینے پر ایسے ہی بالوں کا جنگل اسے خود بڑا بھلا بھلا سا لگ رہا تھا۔ کوئی آواز کانوں میں رس گھول رہی تھی، یہ سب کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا۔ لیکن اب یہی آواز بہت دور ہو گئی تھی، اور اب تو وہ آہستہ آہستہ مایوس ہوتا جا رہا تھا۔ رات تیزی سے ڈوب رہی تھی، اور گھر والوں کے سونے کے بعد اس نے رات کا بقیہ حصہ اسی طرح بےکلی اور خود فریبی کے عالم میں گزارا تھا۔ اسے تہمینہ پر پیار سے زیادہ اب تو غصہ آ رہا تھا۔ سوتی ہے تو اپنی بھری جوانی تک سے بے خبر ہو جاتی ہے۔ جب وہ باہر کھڑا کھڑکی میں سے کمرے کے اندر جھانک رہا تھا تو چاند کی کرنیں بھی تہمینہ کی سوئی ہوئی جوانی پر نثار ہو رہی تھیں۔ ہلکے ہلکے تنفس سے مچلتا ہوا، انگیا میں کسا ہوا جوبن، گھنے اور کھلے بالوں کے درمیان دمکتا ہوا ملیح چہرہ، اور بے ترتیبی سے فرش پر ادھر ادھر پڑے ہوئے ہاتھ پاؤں۔ اف، میں کیا کروں؟ رات بیت رہی ہے۔ وہ تڑپ اٹھتا اور کھڑکی میں سے جھانک جھانک کر اسے دیکھتا۔ سی سی ٹا چٹ، عجیب عجیب سے نامکمل الفاظ کو وہ کچھ اس ڈھنگ سے ادا کرتا کہ وہ سیدھے کان کے پردوں سے ٹکرائیں، لیکن تہمینہ تھی کہ ہر بات سے بے خبر تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میں سو جاؤں گی، تم مجھے اٹھا لینا، جگا لینا، مجھے جگا لینا، اٹھا لینا، جگا لینا، اٹھا لینا۔ اس کے ذہن میں تہمینہ کی آواز انہی الفاظ کا اعادہ کر رہی تھی۔ جب وہ کھڑکی کے بالکل مقابل ہو گیا تو چاند اس کی پشت پر چلا گیا اور اس کا سایہ تہمینہ کی سوئی جوانی پر ڈولنے لگا، اور اس کو اپنے سائے پر بھی پیار آیا جو تہمینہ تک پہنچ گیا تھا اور اس کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ بےکلی اور بڑھ گئی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کی اور یکے بعد دیگرے تہمینہ پر پھینکیں، جو تہمینہ کو لگیں بھی، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہر بات سے بے نیاز بس سوتی رہی۔ اس کا جی چاہا تیز سا برچھا لے کر تہمینہ کی رانوں میں چبھو دے، اور وہ تڑپ کر اٹھے تو رستے ہوئے زخم پر اپنے ہونٹ رکھ دے۔ چچی نے کھانس کر کراہتے ہوئے کروٹ لی اور وہ کھڑکی سے ہٹ آیا۔ پیروں تلے بچھی ہوئی سیب کے پتھروں کا ٹھنڈا فرش بھی اسے اپنے تلووں کی گرمی سے چٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ بھولا بھٹکا کوئی پرندہ اس کے اتنے قریب سے پھڑپھڑاتا نکل گیا کہ اس نے پروں کی ہوا اپنی گردن پر محسوس کی۔ پرندہ کہیں کھو گیا تو اس نے احاطے کے باہر جھاڑیوں میں پکارتے ہوئے کپڑوں کی آواز سنی جو یوں ہی مسلسل پکار رہے تھے، لیکن اس کو متوجہ نہ کر سکتے تھے۔ اس نے بڑی حسرت سے چاند کو دیکھا۔ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ چندا، لیکن چاند اس کی التجاؤں سے بے نیاز ابر کی مہین سی چادر میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں ڈوب جاؤں گا، سینے میں ڈوبتی ہوئی محبتوں کی طرح۔ اور جب چاند کو اس کی چاندنی سمیت ایک دیو ہیکل اڑتے ہوئے بادل نے دبوچ لیا تو اپنے اطراف یکایک پھیل جانے والے ملگجے اندھیرے سے اسے یک گونا سکون سا ہوا۔ وہ پھر کھڑکی تک آ کر اس کی سلاخوں پر جھک گیا۔ اپنے گالوں اور پیشانی پر اس نے برف کی قاشیں محسوس کی۔ بدن میں رواں خون کی حدت اور تناؤ نے کھڑکی کی سلاخوں کی ٹھنڈک کو ناگواری کی حد تک محسوس کروایا۔ اب اس کی جھلاہٹ کا عالم دیدنی تھا۔ کھڑکی کے نیچے پڑی ہوئی جھاڑو پر نظر پڑی تو اس نے جھنجھلا کر جھاڑو اٹھا لی اور سلاخوں کے اندر کر کے احتیاط سے اپنے داہنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا اور بڑی مشاقی سے کلائی کو بل دے کر تہمینہ پر کھینچ مارا۔ جھاڑو تہمینہ کے ڈولتے ہوئے سینے پر پٹک کر اس کے برابر سوتی ہوئی بخالہ کے چہرے پر اس طرح نچھاور ہوئی کہ اس کی نوک اور ریشے ان کے نتنوں میں جا گھسے۔ بخالہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کمرے میں دیکھا۔ چچی امی سوتے میں بھی انہیں سسکیاں لیتی ہوئی محسوس ہوئیں، جیسے منور میاں کو آخری بوسہ دے کر ودا کر رہی ہوں۔ تہمینہ پاس ہی اپنے گلنار بدن کو ایسے ایسے زاویوں میں پھینک کر سو رہی تھی کہ بخالہ نے اس کو بغور دیکھا تو ان کے ہاتھ بھی انجانے میں انگڑائی کے لیے اٹھ گئے، اور جب یہ نیم انگڑائی جماہی پر ختم ہوئی تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تہمینہ کے کرتے کا دامن اس کی شلوار پر درست کیا۔
फिर ओढ़नी से सीने को इस तरह ढक दिया जैसे उसकी सारी जवानी की पोट बनाकर नेफे में उड़स लेंगी। ये सब करके बुखाला ने जाने क्यों पहले अपनी नीम उरियां बाहें देखीं, जो तहमीना की उरियां बाहों से गोरी थीं, लेकिन उसकी बाहों में दौड़ने वाले खून में जाने कितना पिघला हुआ लोहा मिला था कि बुखाला फिर उसी की बाहों को देखती रह गई। यकायक उनकी नज़र अपने सिरहाने तकिए पर धरी झाड़ू पर पड़ी तो उन्होंने पलकें झपका झपका कर देखा। फिर नज़रों ने कमरे भर का तवाफ किया और खिड़की पर उठी तो कोई साया खिड़की की जानिब बढ़ता बढ़ता पीछे हट गया। बुखाला जहां दीदा थीं, मुँह आतिश दीदा की तरह बल खाकर रह गईं और सारा माजरा यूं पलक झपकते में समझ लिया जैसे कोई चुपके से कान में सब कुछ कह गया हो। जब वो तेज तेज कदम उठाता बरामदे में पहुंचा तो बुखाला के खौफ से खुद को महफूज रखने के लिए उसने कुछ गुनगुनाने की कोशिश की, लेकिन चची अम्मी की नींद में उभरती हुई सिसकियों ने, जिन्हें वो अभी अभी सुन आया था, उसे गुनगुनाने से बाज रखा। उसको चची अम्मी पर तरस आने लगा, लेकिन जल्द ही उसका जज्बे तराहुम बेजारी से बदल गया। उसने चची अम्मी ही को दर्शन देते हुए सोचा, इन्हीं को तो शौक है कि मुनव्वर भाई अमेरिका से डिग्री ले आएं और जो उठा लाएं किसी बेरंग तितली को, तो यही चची अम्मी डाल डाल पात पात की हो रहेंगी। ओहो, हटाओ भी, आज अगर मुनव्वर भाई की विदाई की तकरीब ना होती तो ख़ानदान के इतने सारे लोग एक जा जमा ना होते। तहमीना की अम्मी तो अपने कशीदा ताल्लुकात को और तूल देती, और मैं अपनी तहमीना से न जाने और कितने दिनों तक न मिल सकता। उस तहमीना से जिसने मुझे पहली बार बतलाया कि औरत में एक बार डूब कर जब कोई मर्द खुद को पहचानता है तो आखिबत में मिलने वाली 1000 जन्नतों पर भी उसे हंसी आती है। अपनी ही सोचों में गुम वो बरामदे से होकर गैर इरादी तौर पर सहन की सीढ़ियों तक चला आया तो पॉलिश किए हुए पत्थरों के चबूतरे तक पहुंचते पहुंचते वो जैसे फिर होश में आ चुका था। जमीन पर लेटी हुई चांदनी देखते के देखते उसकी नज़रों के सामने कजला रही थी। आसमान पर चांद इस तरह खामोश था कि बोलता हुआ लगता था। अब्र के झूमते हुए हाथी उसकी तरफ बढ़ रहे थे और चांदनी जुदाई के तसव्वुर से सिसक रही थी। रात बीत रही थी, रात तेजी से बीत रही थी। खुशियाँ सो गई हैं, सिसकियाँ सो गई हैं, जज्बे सो गए हैं। सिर्फ औरत जाग रही है, सिर्फ मर्द जाग रहा है। औरत कहाँ जाग रही है? उसे तहमीना पर गुस्सा आया। किस आसानी से कह दिया था, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगी, तुम मुझे जगा लेना। बेवफा कहेंगी। उसने अज़्म समीम के साथ अपने बदन को देखा तो उसको अपना अंग अंग टूटता हुआ महसूस हुआ। मैं दबे पांव कमरे में ही पहुंच जाऊंगा, उसे जगाऊंगा या फिर अपनी गोद में भरकर उठा लाऊंगा। उसने मजीद कुछ सोचने से अपने इरादे की इस्तकामत को मुतजलजिल होने से बचाने के लिए लौटकर सीधे कमरे का रुख किया। वो भूल गया था कि अभी अभी बुखाला जाग कर सोते जागते नीम ख्वाबीदा माहौल का जायजा ले रही थी। लेकिन कमरे के करीब पहुंचकर जब उसने चची अम्मी की सिसकी सुनी तो इस ख्याल ही से सीने में भी एक टीस सी उठी कि बुखाला जाग गई थी। जिस कदर तेजी से वो गया था उसी कदर फुर्ती से वो बेमराम लौट आया। बुखाला की फिर से आंख लग जाने तक उसे अपने लिए अगर कोई गोशाए आफियत नजर आया तो वो उसका अपना बिस्तर था। वो चुपका सा पैर दबाकर कई कमरों में से होता हुआ उस मकाम पर पहुंच गया जहां तहमीना को उसे ले आना था। अपने उस गोशाए आफियत के पास पहुंचकर उसके पैर एक एक मन के हो गए। वो सोच भी न सकता था कि अपनी तहमीना को साथ लिए बगैर वो इस मकाम पर नामुराद वापस आएगा। अब गर्मी और हब्स का एहसास भी उसको कुछ ज़्यादा ही होने लगा। वो कमरे में दाखिल होने के ख्याल ही से उदास होने लगा था। वो बिस्तर जिस पर तहमीना के बदन का गुलजार खिलने वाला था, उसको उस उजड़ी हुई हालत में देखकर वो क्या करेगा? तहमीना तहमीना तहमीना। अब तक उसका दिल, उसका दिमाग बस एक ही रट लगाए हुए था। वो कमरे में सो रही थी, लेकिन वो उसको अपने जिस्म से चिमटा हुआ महसूस कर रहा था। उसके बदन पर वो चूंटियां सी जो अब तक रेंग रही थीं, अब कहीं मुंतशिर हो रही थी। जाने क्यों वो अब कुछ उदास हो रहा था। उम्मीद की वो किरणें जो चांद की किरणों से ज्यादा मुनव्वर थीं, अब अपनी रोशनी खो रही थीं। बार बार ये ख्याल आकर उसको सता रहा था कि बुखाला जाने कब तक जागती रहें। वो तो खर्राटे की नागिन की तरह तहमीना पर कुंडली मारे बैठी थीं। कमरे के खुले हुए पट जब बगैर हवा के झोंके के बंद होने लगे तो बेसोचे समझे उसकी नज़र उठी। अपने ही नंगे सीने के बालों के जंगले में घूमती हुई उसकी उंगलियां सुकड़ और अकड़ कर जहां की तहां रह गईं। उसने अपने बिस्तर पर बुखाला और मुनव्वर भाई को गट पट साफ देखा और खुद ही दीवार की ओट में होकर छुप गया। लेकिन बिजली की करंट की सी सूरत के साथ एक ख्याल उसके जहन में आया, तहमीना को ले भागो, उसको जगा लूं, उसको गोद में उठा लूं। फिर उसने कुछ और सोचने की जहमत नहीं की। जज्बात के उस समुंदर में जो उसके सीने में ठाठे मार मार कर थक गया था, फिर एकदम देखते बाढ़ आ गई।
मुनव्वर भाई और बुखाला की नज़रों से बचने के लिए उसने हर उस दीवार के साए में खुद को छुपाया जो करीब तरीन रास्ते से बहिफाजत उसको तहमीना के कमरे तक ले जा सकता था। तहमीना के कमरे में पहुंचकर उसने अपनी उल्टी सीधी सांसें दुरुस्त की। चची अम्मी अब भी शायद नींद में सिसक रही थीं, क्योंकि उनकी सिसकी कमरे में कहीं से उभर रही थी। सुबह को उनका बेटा उनसे जुदा होने वाला था, 7 समुंदर पार जाने वाला था। वो रोती, बेदार होती, फिर गुनूदगी के आलम में सिसकती। उसे चची अम्मी की उस सिसकी पर कोई तरस नहीं आया, बल्कि बड़ी बेजारी सी महसूस हुई। कमरे में घुप अंधेरा था। बू खाला ने शायद अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर खिड़कियां और रोशनदान सभी बंद कर दिए थे कि न चांद की किरणें कमरे में दर आएं, न उनका राज अफशा हो। उसने ज़्यादा देर करना मुनासिब न समझा। बेतरतीबी से इधर उधर सोती हुई औरतों में तहमीना नहीं थी। वो सोचने लगा, मैं खिड़की से देख रहा था तो वो यहाँ थी, अब मैं दरवाजे से दाखिल हो गया हूँ तो जाविया बदल गया है, उसको यहाँ होना चाहिए। हाँ, ये रही। उसने सर पर हाथ रखकर तहमीना को झिंझोड़ा। चची अम्मी एकदम उठी और बैन करना शुरू कर दिया, मेरे पीर साहब, मेरे पीर साहब, मदद करो मेरी, दुआ करो मेरे लिए कि मुझ में इतनी कुव्वत आए कि मैं अपने मुनव्वर प्यारे की जुदाई को बर्दाश्त कर सकूं। पीर जी, मेरे पीर जी। चची अम्मी ने जैसे ठान लिया था कि चीख चीख कर रोएंगी। अब तक तो वो दिल पर काबू रखकर आहिस्ता आहिस्ता सिसकती रही थी। सबों ने समझाया भी था कि इस तरह नहीं रोते, बेटा समुंदर पार तालीम पाने ही तो जा रहा है, लौटेगा तो पिंगोड़े में झल्लाएगा। चची अम्मी को कभी पिंगोड़े का ख्याल नहीं आया। वो तो बस यही चाहती होंगी कि मुनव्वर प्यारा जल्द से जल्द लौट आए। जब उनकी बैन करती हुई आवाज़ का जादू सोने वालों की नींदों पर चढ़कर बोलने लगा तो सोए हुए कमरे में जिंदगी कसमसा कर बेदार होने लगी और वो तेजी से नामुराद लौट आया। कुछ इस तरह जैसे गया ही इसलिए था कि कमरे में सोने वालों की नींदें चुरा लाए। एक महफूज कोने में छुपा हुआ वो कान लगाकर सुन रहा था। कमरे की खिड़कियां और रोशनदान खोले जा रहे थे। उसने झांक कर देखा, कमरे की लाइट शायद जला दी गई थी। जो उजाला दरवाजे की दराज से सीधे उसके कदमों तक पहुंच रहा था, जैसे बतला रहा था कि चोर यहाँ है। उसने जरा सा और पीछे हटकर खुद को ओट में कर लिया। कुछ देर यूं ही खड़ा वो कमरे में से आती हुई आवाज़ों को सुनने और पहचानने की कोशिश करता रहा। तहमीना की आवाज़ से उसके कान अब भी महरूम रहे। बेवफा कहीं की, सफ़ाक, सारी दुनिया जाग जाएगी लेकिन वो नहीं जागेगी, वो तो मर गई है। उम्मीद की आखिरी किरण को सुबह की पहली किरण के हवाले करते हुए उसने ठंडी सांस ली। बुखाला को साड़ी की फेरियां बराबर करते हुए जब उसने छपाक से उस कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा जहां चची अम्मी सिसक रही थीं, तो साथ ही उसने ये भी देखा कि मुनव्वर भाई बड़े इत्मीनान से पीछे पीछे इस तरह आ रहे हैं जैसे चची अम्मी का रोना पीटना सुनकर कच्ची नींद से अभी अभी बेदार हुए हों। उसने पहली बार मुर्ग के बांग देने की आवाज़ सुनी, हालांकि मुर्ग कई बार बांग दे चुका था। उसने पहली बार चिड़ियों को चहचहाते हुए सुना, हालांकि वो देर से चहचहा रही थी। वो तहमीना के बदन के गुलजार से जवानी को घसीट कर लाने में अब कुछ कामयाब हो रहा था। तसव्वुर में खिलती और चटकती हुई तहमीना के बदन की कलियां अब उसकी आंखों में कंकरियां बनकर खटक रही थीं। उसने सोचा कि चलो कमीज बदन पर डाल लेते हैं, चलकर देख लेते हैं कि इस हश्र के आलम में भी जवानी किस तरह सोती है। अब तो घर के सारे लोग एक एक करके जाग रहे थे। वो इत्मीनान से चलता हुआ अपने कमरे में गया। बिस्तर को ऐसी ठोकर लगाई कि वो गोलमोल होकर दीवार से जा लगा। कमीज बदन पर डालकर कमरे में पहुंचा जहां कुछ देर पहले सिवाय तहमीना के उसको कुछ नजर न आता था। तो वहां करीब करीब सभी बेदार हो गए थे। दूसरे कमरे में सोने वाले कुछ मर्द हजरात भी निकल आए थे। बुखाला तहमीना के सीने पर आंचल दुरुस्त करती हुई उसे झिझोड़ रही थी कि वो जाग पड़े। मुनव्वर भाई बुखाला से इतने बेनियाज थे कि उधर देख ही नहीं रहे थे। चची अम्मी से लगे छोटे से बच्चे की तरह उकड़ू बैठे थे और चची अम्मी के चुप कराने वालों को मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखे जा रहे थे। चची अम्मी मगर बार बार यही कहे जा रही थी, मेरे पीर मेरे ख्वाब में आए थे। मुनव्वर जानी के सर पर हाथ फेर कर वो मेरी तरफ बढ़े। मेरी आंख खुल गई। जब मैं बेदार हुई तो मैंने अपने सर पर उनके हाथ का लम्स साफ तौर पर महसूस किया। वो एक एक से कह रही थी। कितनी शफकत से वो मेरा सर सहला रहे थे, मेरे पीर जी, मैंने अपने मुन्नू को तुम्हारी हिफाजत में दिया मेरे पीर। तहमीना अंगड़ाई लेकर आंखें मलती हुई उठ बैठी तो उसने अपने बदन में टूटती हुई सुइयों को अपनी आंखों में इकट्ठा करके तहमीना को बड़े दर्द से देखा। लेकिन अब क्या हो सकता था, रात जा चुकी थी, पाँव फट रही थी, घर का घर बेदार हो चुका था। उसने दिल ही दिल में कहा, चलिए पीर साहब, और खुद ही कुछ सोच कर लरस लरस कर रह गया।